implementing innovative financial solutions committed to the empowering business through comprehensive consultancy and cutting-edge tools for the financial management. He has co-authored the book for the Tele for Professionals published by WIRC ICAI. He has also developed a fully integrated tele modules for diverse sectors, including real estate, for the CAs, for the logistics, and for the education purpose. He is an invited member and Sustainability Reporting Board of ICAI for the year financial 23-24. He is a committee member of Technology Initiative Committee for the BCAS. He is a co-opted member of the Digital Accounting and Assurance Board for the year 1920. He was a faculty at the ICLS Academy, training IAS officers at IICA campus Manesar. He has delivered sessions for the Maharashtra Sales Tax Practitioners Association for the GST and VAT audit implementation in Tele ERP 9. He is speaker at various study circles, branches, BCAs, and Chamber of Tax Consultants. He is a founder member and the General Secretary of the JCA Federation Mumbai. He was the past convener of the Mumbai Central CP Study Circle, and he was the ex-joint treasurer for Shri Parshvanath Jain Vidyalaya. Currently, now he is a committee member. A trusted voice in financial technology innovation, CA Punit Bhai Mehta continues to bridge the gap between the accounting and the digital transformation. For this introduction, I now request C. Amish Bhai to present a memento to the speaker. Good afternoon, friends. So after a powerful session of CA Jiten Mehta and in-depth analysis and introduction on GST and Tally Prime given by CA Amit Bhai, this session is going to be more in-depth and more practical oriented in terms of what we have to do. Okay, so at the outset, let me thank WIRC, especially C. Ankit Rathi, for allowing this program to happen, and the team at WIRC has Subhash Bhai and the entire team had worked hard for getting this coordinated, and we all are here with 150 odd people, 150 or 200 people. So friends, today's session, I'm going to discuss mainly on the reconciliation part, right? So how many of us are using Tele Prime 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, quite a bit. That's nice. That's nice. And how many out of these few numbers, I mean about 20% of the audience, how many of us have started using the reconciliation part? 1, 2. Oh, that's it. So out of the, if you see the latest audience or total sample size में अगर हम देखें तो 2 out of 150 और 2-5 जन ने use करना चालू किया है. Those who have downloaded release 5 or updated release 5, उनको मेरे को एक सवाल है कि why you have not used it? Is it difficult or anything that has come to mind कि क्यों नहीं use किया है sir? Those who have raised hand on release 5? No idea. Knowledge. ठीक है सर. हाँ ठीक है सर. Maybe. I'll come on that. There are few such things that it is there. But आता हूँ उसमें, right? So this is for those who have used it, but those
who have not used it, mainly it is because of knowledge gap, and we will see today that the download of 2B or 2A, what Jiten bhai showed us for GSTR1, it is as simple as that only. Was it simple? What Jiten bhai showed, GSTR1 का reconciliation? Yes? क्योंकि हमारा ही बुक्स है, GST बुक्स भी हमने ही फाइल किया है रिटर्न, और उसी को कंपेयर करना है, राइट? तो वो तो एकदम सिंपल आइडियली होना चाहिए. सो उसमें जनरली कोई गैप नहीं होता है, unless there is you have allowed backdated entries, unless there is some deletion or modification which is happening at your end. मतलब वो थोड़ा सा अगर सिक्योरिटी कंट्रोल रख दिया तो वो भी नहीं होना चाहिए. सो उसके बाद में अगर देखने जाए तो GSTR1 reconciliation is one of the simplest reconciliation we could have, because हमारा books of accounts है. If you have used tally for filing the return, तो वही अपलोड हुआ है और उसी को reconcile कर रहे हैं, ऐसा. The same thing for GSTR 2A and 2B is going to be simple. Yes, there are few other variations which we will discuss as we move along. Right, sir? Done. So this is what the topic for the day is. GSTR 2A 2B reconciliation, 29th of November today. So before we start, I want to give a broad idea of how Tally is moving towards, or what Tally is moving towards. Okay, so now Tally can handle multi-state GSTN. Both our books of accounts, if you are having a multiple state registration, that, or if your customer is having multiple state GSTN. How many of us are aware of this fact that this is possible in Tally? Raise your hands. Both. For the first and the second, both we are aware? Okay. For those who have not raised, I'll just give an explanation. Earlier, before release 3, we are talking about release 5. Before release 3, only one state GST we could file, GSTR1, 2A, 2B, we could get it only for one state. After release 3, we can get it for multi-state. And as far as vendor or a customer is concerned, if we want, we could create the ledger for the same customer. If Reliance Industries is my customer, for the same customer I can create 5 or 10 addresses. So that was there in Tally for long, but many of us are not aware. So I just thought, okay, multi-GSTN is amazingly simple. You can work in that. GSTR1, return and filing. Upload as well as filing. We saw what Jiten bhai showed us today, that how once the moment your returns are done, you have completed your transaction, your return can be uploaded and filed along with EVC. So sir ने बताया आज हमको कि EVC भी फाइल होता है तो किस तरह से वर्किंग होता है. What I am going to show is this: faster GSTR return, download and upload भी कर सकते, sorry, download ही है, download and reconciliation, a seamless reconciliation experience. That's what I intend to showcase it to you. And the idea is that moment we go out from here, the next day you should be able to carry out this reconciliation process absolutely simply at your end. Right. So any GST reconciliation or any transaction which is based on GST, what Amit bhai showed to all of us in the morning, are primarily related to things. One is having our masters correct, and second is having our transactions correct. But before our masters, we should know what the setup is, and I'm sure in depth, detailed, Amit bhai showed us that what are the important configurations that one must take care while activating the GST, how the turnover, where it has to be showcased, and all those things. HSN code कहाँ पे update होता है, item में, ledger में, कहाँ पे update हो रहा है, तो वो सारा चीज़ GSTR अमित भाई ने configurations में I'm sure उन्होंने दिखाया है. Masters, again he took it up in terms of कि this is the right way. GST के ledger में आपको you'll have to select the GST
You know, without that you will not be able to get the automated value. Maybe the rounding of working are there. So how that thing has to be set up, तो वो हमको already ले लिया. Invoicing and the transactions we have already seen. What Jiten bhai showed us GSTR1 file करते वक्त कि how the transactions are there. इन सब का GSTR1 या invoicing या purchase transactions अपने complete हो जाते हैं तो returns file होते हैं. And this we have seen. And final lot, we are here today. We are here now in terms of matching the books and the GSTN data. Okay. So in simple layman words, what is the process of reconciling? क्या क्या होता है रिकंसिलेशन प्रोसेस में? क्या क्या चीजें मुझे मैच करनी है? एनी 2A 2B है, बट 2A 2B में क्या इन डेप्थ? डेट ऑफ इनवॉइस, अमाउंट, पार्टी नेम. यस, लेट मी जस्ट टेक इट. इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, मतलब जब मैं परचेस कर रहा हूं तो इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल अमाउंट, that is the assessable value, taxable amount, tax amount. Now tax amount with tax type, CGST कितना है, SGST कितना है, IGST कितना है, GST नंबर जिसका मैं मैच कर रहा हूं, GST नंबर एंड इनवॉइस अमाउंट, राइट. इसके अलावा कुछ और चीज होती है मैच करने के लिए? HSN कौन बोला? कहां पे आपने? HSN GSTR 2A में बड़े से मिलता है अपने को? सर 2A 2B में दोनों में HSN नहीं मिलता है. वी कैन नॉट. और कोई चीज बाकी रहती है इसके अलावा? स्टेट, वो टैक्स टाइप में मैच हो जाएगा, ठीक है. प्लेस ऑफ सप्लाई, अग्रीड. यस. रेट 2B से निकाल दिया है, प्रोबेबली 2A से भी आगे जाके निकाल देंगे. आई विल कम ऑन दैट कि रेट ऑफ टैक्स, अभी फिलहाल इसीलिए मैंने टैक्स अमाउंट ही लिया. यू आर करेक्ट. द अर्लियर 14 अक्टूबर या 14 नवंबर के पहले वाला जो GSTR 2B डाउनलोड था उसमें रेट ऑफ टैक्स भी मैच कर रहे थे हम लोग. यू आर करेक्ट, राइट. और two more things according to me, maybe there could be few. One is eligible for input credit and RCM. Yes, ये भी होता है, ये भी आपको मैच करना होता है. आपने आपके ट्रांजैक्शन में एलिजिबल फॉर इनपुट नो रखा है, उधर से येस होके आया है, RCM आपने येस रखा है और उधर से नो होके आया है, तो वो भी आपको मैच करना पड़ता है. बट उसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है. बट जनरली ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस 6 थिंग्स आर देयर विच वी आर मैचिंग. सो जब हम बैंक रिकंसिलेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नंबर एंड अमाउंट, ठीक है. तो ये दो चीज हम रिकंसाइल करते हैं और फिर उसमें हम 4 स्टेटमेंट देते हैं. अवेलेबल इन बुक्स, नॉट इन बैंक स्टेटमेंट, अवेलेबल इन बैंक स्टेटमेंट, नॉट इन बुक्स, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. इस तरह के हमारे 3 या 4 पार्ट्स होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक रिकंसिलेशन. एंड अभी जब हम GST रिकंसिलेशन की बात करेंगे तो हमको भी ये टाइप के एरर्स को समझना है. जस्ट ये कोई ऐसे मतलब ऐसा रॉकेट साइंस वाले पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन देखने से सामने समझ में आ जाता है. व्हाट इज माय लैंग्वेज इज ओके, हिंदी एंड इंग्लिश, और यू वांट मी टू टॉक ओनली इन हिंदी और ओनली इन इंग्लिश, वॉट एवर वे आई एम मतलब मिक्स इज फाइन. थैंक यू. So let's decide today's flow. We'll first work with 2A 2B reconciliation, then 3B reconciliation. How many of us are aware that there is a 3B reconciliation in Tally also? Aware? 1, 2, okay, 3. Oh. We will discuss on GST dashboard. एक है ना डैशबोर्ड ऑलरेडी हमको आई थिंक जितेन भाई ने लिया ना, अमित भाई ने लिया. अमित भाई ने आज सुबह डैशबोर्ड ले लिया है. वी विल सी उसी डैशबोर्ड को थोड़ा और मॉडिफाई करके GST डैशबोर्ड मेरे लिए क्या काम का है. सो बिकॉज टुडे
the topic for the entire day is GST. तो Tally Prime GST dashboard एक कैसे हम use कर सकते हैं? तो one use case of dashboard that we will do. And after that, new updates क्या आ रहा है? Because there are new things. Government है, कुछ ना कुछ नया लाता है. It is their responsibility to bring new things. And once government brings up new things, obviously the software company also brings up those things which could be helpful to the assessees or to the consultants. तो software company की तरफ से क्या आ रहा है नया? So that I will discuss in brief. Okay. Right. So let me take this topic first. Set return GST return effective date for returns. What is this? I will show what is the reconciliation, but this is one of the important topics that we all have to understand before we move forward on the reconciliation part. Okay. So anything, किसी का suggestion आता है कि क्या है? I think Jitin bhai, we have taken up. अच्छा, we have already taken up. For 1 we have already taken up, but we have not taken up for 3B and 2A 2B का. ठीक है. So Jitin bhai has already explained the concept when in sales invoice we can do Alt I. We showed that Alt I, more details. Okay. Let me, shall I show it to you once again? Yeah. Okay. One second. So ये मेरा purchase transaction है. Jitin bhai must have taken it from sales, but the functionality remains the same. जो भी functionality है वो same रहती है. That is Alt I. नहीं, Control I. I'm sorry. Whenever there is a single line below a particular key, then it is Control. And if it is a double line, it is, sorry, whenever it's single, it's Alt. When it is double, it is Control. तो ये जो more details है, ये more details is Control I. Control I. Okay. So here I will first go show more and put the GST return effective date. So क्या बोलता है? What does that mean? One second. Here also F12. Yep. What does this mean? That for this transaction, the return effective date for 2A is 10th September, 2B is 10th September and 3B is 10th September. जो सर ने दिखाया होगा जितिन भाई ने, वो 1 and 3B के लिए दिखाया होगा. Obviously it was a sales transaction which is affecting only and only your GSTR 1. Right? What is the importance of this field? The importance is that your books of accounts this is your transaction date. This is affecting your regular books of accounts, that is your balance sheet, trial balance, profit and loss account. उसमें आपका ये document date से impact होता है. जब हम GST की बात कर रहे हैं, हम reconciliation की बात कर रहे हैं, और हम reconciliation में ये बोल रहे हैं कि सिस्टम GSTN के ऊपर कौन सा डेट है, GSTN ने कभी किया है, तो दैट डेट, बिकॉज GSTR 2A का डेट सेपरेट हो सकता है, 2B का डेट सेपरेट हो सकता है, 2A 2B का डेट सेपरेट हो सकता है, और साथ में 3B का भी डेट सेपरेट हो सकता है. क्लासिक एग्जाम्पल इज व्हेन आई टेक अ प्रोविजन और एक्सपेंस इन द मंथ ऑफ मार्च. इट इज माई नीड, आई हैव टेकन इट, बट आई हैव नॉट टेकन द क्रेडिट, और सामने वाले ने भी फाइल नहीं किया था, तो उसने फाइल किया 2 महीने बाद में, तो 2A में मेरे को 2 महीने बाद में दिखा, उसने बाद में पैसा नहीं भरा था, 3 महीने बाद में 2B में दिखा, तो 2A 2B का मेरे को 3 महीने बाद का मेरे को
इसमें डेट डालना पड़ेगा. सो फॉर ईच ट्रांजेक्शन, नाउ दिस इज फॉर ईच ट्रांजेक्शन वी कैन प्रोवाइड द डेट 2A 2B एंड ऑफ कोर्स द ट्रांजेक्शन डेट सेपरेट ही है, और 3B में कभी रिफ्लेक्ट करता है. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, नो? यस, ग्रेट. बिकॉज दिस इज, आपको हम आगे जाके करेंगे तो मंथ का गैप आएगा, कभी ईयर का गैप आएगा, तो ये सारे गैप को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं कोई भी ट्रांजैक्शन में 2A 2B का डेट और 3B का डेट अपने हिसाब से डाल सकता हूँ. सिस्टम लेगा, जब हम ऑटोमेटेड रिकंसाइल करेंगे वी विल सी द मैजिक एंड वी विल टेक हेल्प ऑफ मे बी मानसी जी का ऑल्सो, इधर आएंगे तभी. लेकिन सिस्टम जो देगा, अगर हमको चेंज करना है हमारे हिसाब से, वी कैन डेफिनेटली डू इट. और कहाँ से करना है मैंने बताया आपको. ओके सो कंट्रोल आए, मोर जीएसटी रिटर्न. ठीक है. मिसमैच, दूसरा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है. मिसमैच इन रिटर्न पीरियड. टैली बोल देता है, टैली ने पूरे साल का डेट दिया है, तो आपने कौन से रिटर्न पीरियड में फाइल किया है और कौन सा सामने वाले ने फाइल किया है, तो वो मिसमैच इन रिटर्न पीरियड भी बता देता है. एंड एट द सेम टाइम मिसमैच विद इन द बुक्स है, वो भी बता देता है. ठीक है. सो नाउ शैल वी स्टार्ट द प्रोसेस? यस, ओके. सो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज द steps that we have to follow? How many steps that we have to follow? There are hardly 3 or 4. First, GST login पे जाना है आप लोगों को, और ये कवर किया है हमने. प्रोफाइल में जाके एक्टिवेट API एक्सेस, उसको एक्टिवेट करना है आपके GSTN लॉगिन पे. ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. बिना उसके आपका कुछ भी इधर वर्किंग नहीं चलेगा. ओके, द फर्स्ट स्टेप. अच्छा, नॉट शोन, कोई बात नहीं है, वी कैन शो इट एट लेटर पॉइंट अगर जीएसटी का हमारे पास डेटा मिलता है लॉगिन. बट इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है. प्रोफाइल में जाके यू हैव टू फर्स्ट एनेबल API एक्सेस. दोज ऑफ यू हु हैव इम्प्लीमेंटेड ई-वेब, ई-इनवॉइस एंड ई-वे बिल, उसमें हमको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारा डिटेल्स अपडेट करना पड़ता है, उसका यूजर ID क्रिएट करना पड़ता है. बट फॉर दिस हमारे खुद के GSTN या क्लाइंट के GSTN में लॉगिन करना है पोर्टल पे, और इन द प्रोफाइल देयर इज वन ऑप्शन विच इज गिवन दैट अलाउ API एक्सेस. यू हैव टू गिव अलाउ API एक्सेस. 1. Second, it will ask that the saved password should be allowed for how much time? कितने टाइम के लिए सेव पासवर्ड होना चाहिए? तो यू कैन गिव 2 hours 3 hours. स्टैंडर्ड इट टेक्स 6 hours. आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा लेता है, बट 6 hours तक अगर एक बार हम जब लॉगिन करेंगे तो 6 hours तक वो पासवर्ड सेव्ड रहता है. ठीक है. सो ये एक आप ध्यान में रखिएगा. फर्स्ट स्टेप इज GSTN लॉगिन. नहीं, कुछ भी नहीं. देयर इज नो, या जितन मैंने करेक्ट क्लैरिटी किया कि डू यू हैव एनी स्पेसिफिक API एक्सेस कि टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है. यू जस्ट हैव टू एनेबल API एक्सेस, और कुछ भी नहीं है, जस्ट देयर इज वन टिक एंड सेव. ओके, उसके बाद में आप टैली प्राइम में आ जाइए, गो टू 2A 2B रिकंसिलेशन रिपोर्ट, और मे बी क्लिक ऑन Alt Z, दैट इज एक्सचेंज GSTN लॉगिन. प्रोवाइड द रेलेवेंट डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए. ऑब्वियसली आपका डेटा कोई दूसरा नहीं लेना चाहिए और दूसरे का डेटा आपके पास नहीं आना चाहिए. तो इसके लिए पूरा एक्सेस कंट्रोल है OTP बेस्ड. देयर इज नो लिमिट कि आप 2 बार डाउनलोड करोगे या 3 बार डाउनलोड करोगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है. बट उसके सामने आप जब भी डाउनलोड के लिए आप सिस्टम में एक्सेस मांग रहे हो, GSTN से कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो डाउनलोड करने के लिए, इट इज गोइंग टू आस्क यू एन OTP विच इज गोइंग टू कम इन द रजिस्टर्ड मोबाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर GSTN. वो रजिस्टर्ड मोबाइल के GSTN में आ जाएगा OTP. यू हैव टू प्रोवाइड द OTP. सर ने भी वो OTP GSTR1 अपलोड और फाइल करने के लिए किया होगा. डाउनलोड GST रिटर्न,
अब जब डाउनलोड करेंगे तो वो बट ऑब्वियसली पूछता है कि आपको कौन से मंथ का करना है, क्या 2A करना है, 2B करना है, सब करना है, क्या करना है, वो पूछ रहा है। तो उस सवाल का जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है उस तरह से आपको उत्तर देना है, आंसर करना है, ठीक है। एंड दैट्स इट। मॉडिफिकेशंस आप सामने सामने देखिए, उसको करेक्ट कर लेंगे वैसा। सो ये जो 4 स्टेप्स लिखे हैं, आर दे डिफिकल्ट, आर दे इजी, जो एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट? हाँ हाँ, दैट इज द प्रायर। इसीलिए मैंने पूछा कितने लोग रिलीज 5 में हैं। This is in release 5.0 which is now the current release. Yes. इसके पहले जो रिलीज 3 में था और 4 में भी था, that was on the basis of downloading the JSON file. आपको पोर्टल पे जाके JSON डाउनलोड करना है और फिर JSON को रिकंसाइल करना है, बट इसमें कुछ भी नहीं करना है। सुबह अमित भाई ने शायद लेजर क्रिएशन बताया, तो लेजर क्रिएशन का क्या फंडा था? कुछ भी नहीं। आपका कोई GSTN मतलब आपको कोई कैप्चा वगैरह कुछ नहीं करना है, जस्ट नंबर डाल दिया, यू आर एबल टू क्रिएट द लेजर इमीडिएटली विथ नेम, एड्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मॉडिफिकेशंस ये सब देखने में लुक्स डिफिकल्ट फ्रेंड्स, और लुक्स सिंपल एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। यार कुछ खाना बहुत अच्छा था या मेरा लेक्चर बहुत बोरिंग है? आई वॉन्ट इंटरेक्शन फ्रेंड्स, इंटरेक्शन के बिना नहीं होएगा। सिंपल है ना? प्रैक्टिकल करके देखना है। ओके ठीक है, चलो। आई मे रिक्वायर हेल्प ऑफ मानसी जी, हमारे नेक्स्ट स्पीकर है, बट लेट मी जस्ट सी कि मैं डायरेक्टली इफ आई एम एबल टू डू इट ऑन माई ओन। ओके, अच्छा स्क्रीन नहीं आया है, आई एम सॉरी, थैंक यू। सो मैंने क्या बोला था? गो टू GSTR रिपोर्ट 2A 2B, या फिर गो टू Alt Z, सिंगल लाइन बिलो Z आपको ऊपर, तो GST लॉगिन लॉगआउट डिटेल्स है। तो ये मेरा ऑलरेडी एक्टिव यूज़र है, मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ देयर, OTP आता है, बट लॉगिन हो चुका है इसमें। एंड इधर अगर मैं जाऊँ तो इधर मेरे को पूछता है डाउनलोड GST रिटर्न। ओके, सो डाउनलोड GST रिटर्न करते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है? कॉन्फ़िगर करना है। तो भाई मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ कि कौन सा मुझे डाउनलोड करना है, ऑल रिटर्न्स करूँ कि 2A 2B करूँ या 3B करना है मुझे। तो मैं फ़िलहाल ऑल रिटर्न्स ले लेता हूँ। ऑल रिटर्न्स अप्रैल टू नवंबर। फ्रेंड्स अभी हम 99C फाइल करने वाले हैं, एंड पहले ऐसा होता था कि एक एक मंथ का मुझे JSON डाउनलोड करना पड़ता था, एक एक मंथ का मेरे को 1 2A 2B सेपरेट डाउनलोड करना पड़ता था, फिर जाके रिकंसिलेशन में बैठना पड़ता था। अभी क्या हो गया है कि रिटर्न पीरियड, ऑल रिटर्न्स, रिटर्न पीरियड भी 6 महीना 1 साल जैसा चाहिए, मैं वैसा स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अप्रैल टू नवंबर, चलो, एंड अक्टूबर कर देता हूँ। And I click on this button called download. Yes. क्योंकि मैंने ऑल रिटर्न्स लिया था इसलिए GSTR1 भी डाउनलोड हो रहा है, जो जितिन भाई ने आपको बताया है, और GSTR 2A 2B, और ये मंथ का नाम भी इधर आ रहा है, देखेंगे तो ये सारा इंफॉर्मेशन इधर आ रहा है। डेटा छोटा है, इट वोंट टेक मच टाइम, but by the time this data goes on, any questions please? नहीं, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने टैली से GSTR1 फाइल किया होगा या 2A फाइल किया, मतलब 3B फाइल किया होगा तो ही ये दिखेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपने ऑलरेडी फाइल कर चुके हो,
वॉट एवर वे यू हैव, आपने क्लियर टेक्स्ट यूज किया होगा, आपने ABC सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, कुछ भी होगा, अभी वो डेटा GSTN के पास है, वो GSTN का डेटा अभी हम नीचे ले रहे हैं. इट डजेंट मैटर आप उसके पास गए कैसे थे, अभी टैली के अंदर से डाउनलोड कर रहे हैं. यस, हम डाउनलोड टैली के अंदर से कर रहे हैं. अच्छा, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है कितनी बार डाउनलोड करना है? नहीं. मैंने एक बार ये डेटा का बैकअप लिया, इसमें एक बार ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, फिर भी मैंने बोला कि नहीं यार मेरे को समझ में नहीं आया. एक स्टेप है आगे, अगर आप लोगों को जानना है तो रीसेट GSTN डेटा, मैं वो सारा डेटा डिलीट करके फिर से मैं डाउनलोड कर सकता हूं. डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटा आपके डेटा के साथ में ही स्टोर होता है, जो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल्स है उसी के अंदर स्टोर हो रहा है. यस, कीप आस्किंग क्वेश्चंस जब तक खत्म नहीं होता है. जितिन भाई, हाँ, सी स्टैंडर्ड, जितिन भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एडवाइस. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, whenever you do reconciliation, whenever you do a system working, release 3 से release 4 में आए, 4 से 5 में आए, you should have a backup. बैकअप रखना ज़रूरी है. सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज अ मैटर ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर IT प्रोटोकॉल्स, बैकअप इज अ मस्ट. बैकअप ऐसा नहीं है यार चलता है चलने दो. इनफैक्ट आई हैव नाउ पर्सनली GSTR1 में फाइल करता हूँ, उसके बाद में भी एक बैकअप रख लेता हूँ कि ये मेरा आफ्टर GSTR1 का बैकअप है. बाई चांस पुराने ट्रांजैक्शन में किसी ने चेंज किया, कुछ किया, तो मालूम कैसे पड़ेगा? हाँ, वो टैली के अंदर भी आप ऑटो बैकअप फंक्शनैलिटी, मतलब एक टैली का वर्किंग है जहाँ पे कर सकते हैं. टैली खुद भी जब हम सर्टन एक्टिविटीज़ करते हैं तो बैकअप लेता है. ये वाली एक्टिविटी में नहीं ले रहा है, बट व्हाट जितिन भाई सेड इज़ वेरी करेक्ट, that we have to take a backup. हाँ 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 हाँ, wow. So practical tips by Jitin bhai continues what he had shared it during those 1.5 hours. Yes. So मानसी जी क्या लिखा है? डाउनलोड इज नाउ कंप्लीट फॉर रजिस्ट्रेशन. पॉसिबल है कि एरर भी आता है, सक्सेसफुल नहीं होता है तो एरर भी आता है, तो यहाँ पे आता है. और इसमें एक ट्रैकर भी दिया है, F1 GST ट्रैकर भी है. एक मिनट, कहाँ पे है? से हाँ, ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटी, सॉरी ये रहा, ये ट्रैकर आता है आपको. तो ये आपने क्या क्या एक्टिविटी की है, तो 1 पेंडिंग टू बी फाइल्ड आ रहा है इसमें ऑप्शन. ओके, करेक्शन नीडेड. और इसमें आपका एक ट्रैकर भी, जब फेल होता था ना, बाई चांस मिस्टेक होता है, तो एक ट्रैकर भी ओपन होता है जिसमें आपने डाउनलोड किया, कितनी बार ट्राई किया, तो वो भी एक्टिविटी एक सामने दिख जाती है. एनीवेज, सो अभी हमने 2A 2B1 ये पर्टिकुलर क्लाइंट का वी हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड. ओके, नाउ वी कम टू द challenges of reconciling. रिकनसाइल करने में कोई चैलेंज है क्या? लेट अस जस्ट सी. सो वी विल गो टू 2A और 2B रिपोर्ट and we will go to October month. Okay, so it says that unreconciled है, there is some difference. वो किसी ने बोला था ब्लू में, तो ब्लू means those which have come from GST portal. Normal black means the one which refers to our books of accounts. जहाँ पे भी आपको blue color दिखेगा, be sure that data is come from the portal. Okay. So 36 and 35 transactions, there is one transaction which is extra. तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाउचर वाइज करके आई एक्सपोर्ट ऑल दीज डिटेल्स, मिसमैच क्या है या जो भी डिटेल्स है ना, वो सारा डिटेल्स मैं भेज देता हूँ एक्सेल में रिकनसाइल करके. ओके, राइट. सो this transaction refers
अवेलेबल ओनली इन बुक्स नॉट ऑन पोर्टल। क्या कर सकते हैं इसका? दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन माई GST बुक्स। ओके, तो इसके लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट वी शुड बी हैविंग? क्या करना चाहिए? पोस्टपोन करना चाहिए, नेक्स्ट रिलीज में डालना चाहिए। कैसे डालेंगे? यस, इसमें जाके कंट्रोल आई, मोर डिटेल्स में GST रिटर्न इफेक्टिव डेट, एंड सिंस मेरा 2B में नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नवंबर मंथ के या दिसंबर मंथ में आई विल कॉल दैट पर्सन, भाई साहब पारक एंटरप्राइज यू हैव नॉट फाइल्ड इट, व्हेन आर यू गोइंग टू फाइल इट, व्हाट इट इज, I will ascertain the status and based on that I will put the date. The beauty is that I am not changing my transaction date. This is one important thing that you have to understand. मैं बार बार इस पे आता हूँ because ये जो GST 2 का 2A 2B का reconciliation बना ही ये बेस पर है effective date, return effective date, and इसीलिए वो मेरा सबसे first conceptual अंडरस्टैंडिंग था। इनफैक्ट आई हैड रिक्वेस्टेड जितिन भाई कि उसको पहले भी आप ले लीजिए थोड़ा, तो क्या है वो चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे से। सो ये मैं नवंबर मंथ में उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। या 2B में भी नहीं है, तो 2B में भी नहीं है तो 3B का भी, दोनों का डेट में नवंबर डाल देता हूँ। मेरे को 2B में भी नहीं चाहिए ना, या 2A का भी जब आया ही नहीं है 2A में, तो वाई शुड आई, हाँ, आई एम नॉट चेंजिंग माई ट्रांजेक्शन डेट, आई एम नॉट चेंजिंग माई TDS लायबिलिटी, आई एम जस्ट पोस्टपोनिंग द रिफ्लेक्शन टू द नेक्स्ट मंथ। एंड ओके, लेट मी जस्ट डू इट एंड उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं। Sorry. अक्टूबर ही रहने दिया मैंने और इसको नवंबर में कर दिया। तो जब वो एक ही दो ट्रांजैक्शन थे, मैंने एक ही ट्रांजैक्शन चेंज किया, तो इधर आएगा, इधर जब डैशबोर्ड आप पूरा देख रहे हैं ना, तो इधर आ रही है मिसमैच इन रिटर्न पीरियड। आप अक्टूबर मंथ का रिकन्सिलेशन रिपोर्ट देख रहे हैं और नवंबर मंथ का कोई, मतलब जो नवंबर मंथ का ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो इसमें आ गया है वैसा। तो वो जो अभी हमने ये डेट किया, अच्छा ये वाला डेटा, एक मिनट, वो अलग है, ये सॉरी, मिसमैच इन रिटर्न पीरियड ये अलग है, बट मैं जब नवंबर मंथ का देखता हूँ, एक मिनट, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अदर पीरियड्स। करंट पीरियड के 13 ट्रांजेक्शन्स हैं और ये एक अदर पीरियड के ट्रांजैक्शन आ रहा है विच इज़ माई अक्टूबर ट्रांजैक्शन। और नॉट ओनली ईयर, ऑल्ट G, (3B) नवंबर में भी इनपुट क्रेडिट में वो मेरे को इसमें आ जाएगा, मूव टू अदर रिटर्न पीरियड्स, ये वाला ही, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे ITC में भी आ जाएगा वंस। क्या बोल रहे हैं सर? ट्रांजैक्शन मेरा ये मंथ का ही है, सामने वाले ने फाइल नहीं किया है, मेरे 2A में 2B में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते ना आप 3B के लिए, टैली में एंट्री करके रखा है। यस, ट्रू। हाँ, वापिस से अगर नवंबर मंथ में नहीं आया तो आपको वापिस से जाके उसका डेट शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? जितने सी रिकन्सिलेशन के आपके 2-5 ट्रांजेक्शन ही होते हैं, 10 मैक्सिमम,
सो जब तक आपका वो रिकंसाइल नहीं होता है तब तक आपको उसका इफेक्टिव डेट मैनेज करना है, ठीक है. अभी लेट मी गो थ्रू सम अदर रिकंसिलिएशन चैलेंजेस. यप, या प्लीज. ओके, आपको उसने फिजिकल कॉपी नहीं दिया है बट इनवॉइस तो रेज किया है, राइट. वन, हाँ, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है सर, उसने इनवॉइस रेज किया है, उसने फाइल किया तभी आपके पास आया है. क्लियर. अब आपको क्या करना चाहिए आइडियली, इवन आई फेस दैट चैलेंज कि बहुत बार सर्टन टाइम साइट्स की वजह से हमको इन्फॉर्मेशन आता ही नहीं है. आई कम टू नो फ्रॉम माई 2A and 2B कि यार ये है. ओके, व्हाट आई डू, आई पोस्ट दैट ट्रांजैक्शन, फिर उसी दिन का ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लेता हूँ और उसी मंथ में मैं ले लेता हूँ. दैट इज व्हाट आई डू. वैसा यू कैन डिसाइड योर वे, बिकॉज उसने अपलोड कर दिया है, दैट मीन्स इट इज अ पेएबल थिंग फॉर मी. अब वो फिजिकल फॉर सम रीजन मेरे पास नहीं आया है, इंफॉर्मेशन नहीं आया है, सो आइडियली आई वुड पास दिस ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन माई 2A and 2B. जो पहले अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, ये अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल है, ये देखेंगे तो पोर्टल में ही है और बुक्स में नहीं है. तो इसको मुझे कंपेयर करके अपडेट करना है, राइट सर. That is a system problem that, acha, you are going to cover it in your, yeah, Mansi wants to answer. So we are going to have brief on IMS also, and of course 9 and 9C after 3:45 maybe around. Okay, so we have got lot of topics to cover, but इसमें simple है कि आपका जो details है ना वो यहाँ पे पोर्टल पे अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल है, तो आप जाके कर देते. बहुत बार क्या होता है कि इधर ये नाम नहीं आता है, ये जो ब्लू में नाम आ रहा है ना वो नहीं आता है. ऐसा भी देखा है किसी ने? GSTR 2 में नाम नहीं आएगा, जब मैंने रिकंसाइल कर दिया है तो नाम नहीं आएगा. उसका मतलब ये होता है कि आपके कंपनी में वो पर्टिकुलर GSTN का लेजर नहीं है. ओके, देन यू हैव टू क्रिएट दैट लेजर, जो अमित मैंने रास्ता बताया हाउ टू क्रिएट दैट लेजर. बट कोई वेंडर का अगर आपके पास लेजर है ही नहीं तो इधर ब्लैंक आएगा. इधर आपको एज वाउचर करेंगे तो वाउचर की लिस्ट में आपको GSTN नंबर दिखेगा उसका, लेकिन नाम नहीं दिखेगा. ये नाम आता है, इंफॉर्मेशन GSTN नंबर से ले रहा है, बट ये नाम जो हमारे बुक्स में लिखा है उसके हिसाब से आता है. ये देखेंगे तो उर्वी प्लास्टिक PUR, ऑब्वियसली उसका ट्रेड नेम ये नहीं रहेगा. ओके, सो ये लेजर नेम हमारे बुक्स का है, राइट. या नो, ये नाम आया है, सबके नाम आए हैं, सो वी हैव द लेजर्स. ब्लैक में कौन सा है? वो तो नीचे है उसके, वो उसी का ट्रांजैक्शन है. अनसर्टन बुक्स में दिख नहीं रहा है बिकॉज देयर इज सम मिस्टेक. ओके, देयर इज सम मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. इफ यू सी, ये मिसमैच में भी है. ये कैसा है, इन F12 ये एक और ऑप्शन करके भी यस करके रखते हैं ना, तो वी कम टू नो कि पोटेंशियल मैचेस भी हमको मिल जाता है इधर. इन F12 देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ शो पोटेंशियल मैचेस. सो अभी ये जैसे वो वाला ट्रांजैक्शन था वो ₹1 के डिफरेंस की वजह से था, तो नंबर राउंडिंग ऑफ वैल्यू आप करेक्ट कर लो तो आपका वो करेक्ट हो जाता है. ओके, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द थिंग्स. सो ये सर्टन ट्रांजैक्शंस अवेलेबल ओनली इन बुक्स भी है और अवेलेबल ओनली इन पोर्टल्स भी है. इफ आई सी, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द, आई विल गो वाउचर वाइज. ओके, हाँ बोलिए. हाँ हाँ, यस, इसमें आपको ऑप्शन आएगा एक्सक्लूड करने का, सो दैट वी विल कम ऑन दैट लिटिल वाइल लेटर. बट अभी जैसे मैं वाउचर वाइज करता हूँ और नीचे आ गया ना, तो इसमें मेरे को कुछ चीज़ें मालूम पड़ रही है कि भाई ये
कसरत प्लास्टिक का है 1017 मेरे को अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल है 82,600 वैल्यू मैच है, बट इसका टैक्स रेट मैच नहीं है बिकॉज इधर ये जीएसटी रॉन्ग दिया हुआ है, इधर जो डिटेल्स दिया हुआ है ओके इसमें कुछ तो मिस्टेक है जीएसटी में। एक मिनट so books shows it is yes is a transaction invoice number is the matching not matching yeah. So what I will do, I will put the invoice number 1017 in this transaction. Yep, thank you. So एक ट्रांजेक्शन निकल गया ओके। तो सेम थिंग यहाँ पे जब मैं जाता हूँ, अच्छा इसमें भी वो F12 का, लेट मी जस्ट टेक दिस ऑप्शन शो पोटेंशियल मैचेस। नहीं लिया इसने, एनीवेज लेट मी जस्ट गो थ्रू द अदर ट्रांजेक्शन। एक विजुअल 2,47,800 अगेन कीर्ति इम्पैक्स का है। दिस इज अगेन इनवॉइस नंबर मिसमैच 30th अक्टूबर है एंड so that is also gone, available only in books। अभी ये पारक एंटरप्राइज का भी है और उर्वी प्लास्टिक्स का भी है। so similarly आप जो देखेंगे अभी इधर राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है शायद, या 59,619.5 अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल एंड आपको ये बुक्स में है। सो यू हैव टू ऑप्शन, यू कैन गो एंड करेक्ट द राउंडिंग ऑफ वैल्यू और यू कैन जस्ट से स्पेस बार करके you can go inside the जीएसटी स्टेटस। जो मैंने आपको जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट दिया था ना, उसमें यहाँ पे भी है अवेलेबल ओनली इन बुक्स को सिस्टम इन्फर करके रिकंसाइल्ड। आई एम ओके विद द डिफरेंस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। सो ये इंटरनली आप रिकंसाइल कर सकते हैं। सो अवेलेबल ओनली इन बुक्स से निकल गया, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब रिकंसिलेशन इज of course matching the GSTN books with our books of accounts, but इसमें जो 5 या 6 वेरिएशंस है, डेट मिसमैच, इनवॉइस नंबर मिसमैच, पीरियड मिसमैच, ये मिसमैचेस, वैल्यू मिसमैच, ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके करना होगा। और इसका सबका वर्किंग जो है इट इज़ एज सिंपल, मतलब यहाँ से आप स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। वंस यू गो इनसाइड हियर स्टैट मोर डिटेल्स में, जैसे मैंने बताया आपको ओके, ठीक है। और इसको स्पेस बार करके सेट जीएसटी स्टेटस यहाँ पे भी आना चाहिए, नहीं आया है। सो ये पॉसिबली एक वैल्यू का फ़र्क है या कहीं पे फ़र्क है, ये इनवॉइस नंबर मोस्टली, ठीक है।
सो इसलिए वो मिसमैच बता रहा, बट अदरवाइज वो रिकनसाइल भी कर दिया है उसने ट्रांजेक्शन को, ठीक। सो let us come to the further conceptual slight more working. Okay, many times you have this option of accept, override and back. कितनों को ये ऑप्शन आया है? एक्सेप्ट, ओवरराइड, एंड आप क्या करते हैं जनरली? वाई, एक्सेप्ट, ओवरराइड करते हैं आप. बट मेनी टाइम्स पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट ये ओवरराइड ऑप्शन इज, जैसे अभी टैली का एक इंजन बना हुआ है. सी व्हेन दे आर सेंडिंग द ई इनवॉइस डिटेल्स, इट हैज ऑलरेडी गॉट सम जीएसटी रूल्स और जीएसटी वर्किंग की हुई है इंटरनल. अगर उसके हिसाब से अगर आपके जो मास्टर्स और ट्रांजैक्शन में कहीं पे मिसमैच है तो टैली कंफ्यूज है. सो इफ यू वांट टू रिमूव दैट कंफ्यूजन, तो टैली ने ऑप्शन दिया है आइदर यू ओवरराइड दैट ट्रांजैक्शन कि यस आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड उसके हिसाब से एक्सेप्ट है, और यू डू नॉट मतलब ओवरराइड मत करो, एक्सेप्ट कर लो और बाद में जाके मॉडिफिकेशन कर लो, तो वो आपके मिसमैच में आता है. तो ये कॉन्सेप्ट मालूम होना जरूरी है कि एक्सेप्ट, ओवरराइड और बैक इज रिमेन देयर ओनली. ओके, सो जब भी आप, अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, तो पॉसिबल है कि सिक्योरिटी कंट्रोल में यूजर्स को अलाउ नहीं किया है ओवरराइड करने के लिए. सो यू विल हैव टू गो टू द सिक्योरिटी कंट्रोल एंड अलाउ द यूजर टू ओवरराइड द स्टैट्यूटरी कॉन्फ़िगरेशंस. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्ट, ओवरराइड एंड बैक. द सेम वे हमारे जब मास्टर्स जब हम चेंज करते हैं, जैसे कोई जीएसटी सस्पेंड हो गया, जीएसटी नंबर या कुछ उसका चेंज हो गया, तो हम बहुत बार मास्टर चेंज करते हैं तो वो पूछता है, सो शैल आई चेंज द एंटायर ट्रांजैक्शन, शैल आई नॉट चेंज व्हेन द रिटर्न फाइल विल बी ओवर. तो उस वक्त भी ये तीन ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्ट द मास्टर्स, जीएसटी स्टेटस विल बी अपडेटेड व्हाइल ओपनिंग द रिपोर्ट. कोई भी रिपोर्ट जब जीएसटी की रिपोर्ट चेंज करेंगे तब ओपन होगा, या अभी ही अपडेट कर लेंगे. ओके, इन रिलीज 5.1 विच इज एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 7 days, उसमें उन्होंने फर्दर कंट्रोल दिया है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन से पीरियड का मुझे नहीं चेंज करना है, विच करंट पीरियड का ही करना है, पिछले पीरियड का नहीं करना है. सो दैट दे हैव गिवन मोर कंट्रोल टू द यूजर्स. अभी कैसा हो रहा है कि एक बार नंबर चेंज किया या कुछ चेंज किया, अगर आपने 300 ट्रांजैक्शन हो गए तो पूरे 300 ट्रांजैक्शन में वो पोस्ट प्रोसेस होता है. सो इट टेक्स टाइम मेनी टाइम्स वैसा. सो दे हैव काइंड ऑफ मेड दिस चेंज मॉडिफिकेशन प्रोसेस मोर smoother. Okay, these are all list of errors that you will find, not much to be discussed. System inferred, mismatched. System inferred मतलब सिस्टम को मालूम है, सिस्टम के हिसाब से सिस्टम डिसीजन ले रहा है कि ये मैच हो रहा है कि नहीं ले रहा है. ओके, तो सिस्टम इज डिसाइडिंग ऑन दैट, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इन्फर्ड. मिसमैच हो गया है, मिसमैच फॉर द रिटर्न पीरियड है, अनसर्टन ट्रांजैक्शन है. टैली खुद कंफ्यूज है कि आपको कौन सा जीएसटी का रेट लगाना है, आपने टैक्स टाइप क्या सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको ये एरर दिखाता है. अवेलेबल ओनली इन बुक्स, ओनली इन पोर्टल, ये हमने देख लिया ऑलरेडी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन पोर्टल पे नहीं है और हमारी बुक्स में है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है. ओके, रिकनसाइल्ड मैन्युअली, एक ट्रांजैक्शन हमने रिकनसाइल मैन्युअल कर दिया तो उसमें नीचे जाके ऑप्शन आता है कि ये मैन्युअल रिकन्सिलेशन है. एंड जो जीतन भाई ने बोला कि एक्सेप्शन एक्सक्लूडेड बाय द यूजर, वो भी एक ऑप्शन है विच आई हैव मिस्ड इट. ओके, एंड F12 में जैसे पोटेंशियल मिसमैचेस, पोटेंशियल मैचेस का ऑप्शन आता है तो वो भी हम देख सकते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट लिस्ट ऑफ एरर्स दैट यू विल फाइंड once you are working in this GSTA reconciliation. But in my view these all are self explanatory, कोई rocket science नहीं है इनको समझने का. Okay, ये जब आप करेंगे वर्किंग तो सामने सामने आपको दिखेगा. The best part is what जितिन भाई explained, आप जब 9 या 9C का वर्किंग करेंगे तो do it in a demo data. पहले एक बार डेमो डेटा में, मतलब उसको फोल्डर को लाइव डेटा से अच्छा फोल्डर कॉपी करके उसको फिर आप एक बार ये प्रोसेस को समझिए, हाउ यू कैन कम टू द reconciliation working. Okay, so any questions till now? आपको लॉगिन करना है, आपको लॉगिन करना है, आपका लॉगिन नॉर्मल होगा तो पासवर्ड का कोई ज़रूरत नहीं है. जीएसटी में, टैली में लॉगिन करने के लिए
मेरे को OTP आएगा. OTP तो 10 मिनट का वैलिडिटी होता है, बट आपका जो पासवर्ड एक बार डाल दिया तो 6 आवर्स का आपने जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है. मानसी, कैन वी शो इट ऑन द पोर्टल राइट नाउ? या, सो आई विल रिक्वेस्ट मानसी टू जॉइन मी टू शो इट ऑन द पोर्टल. सो GSTN साइट पे क्या करना है वो भी हम लोग एक बार जाके देख लेते हैं, सो दैट अपना इधर आज का जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाए. नहीं क्या करना है? रखा है पासवर्ड. Yeah, so here in the profile you just have to activate this. एक मिनट डेट वाला भी बता के जाओ. डेट वाला एक बाकी है रिकंसिलिएशन. या मैनेज API एक्सेस, ये आपको एनेबल यस रखना है. और इसका जो ड्यूरेशन है, अच्छा 30 डेज दिया है मानसी ने, बट यू कैन गिव इट बाय डिफॉल्ट. जो आता है वो 6 आवर्स भी आता है. इधर 6 आवर्स है, 30 डेज है, या मतलब दोनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. ये करने के बाद में आपको वापस से पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है. टैली में OTP आएगा सीधा फिर. यस, but it can API will be valid till 30 days. हाँ, 6 आवर्स के बिफोर अगर आपने टैली के एग्जिट किया तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा. टैली नेट पासवर्ड जो सॉरी नॉट टैली नेट पासवर्ड, ये जो आपका टैली के अंदर जो हम GST लॉगिन पासवर्ड है ना, दैट विल गेट सेव्ड फॉर 6 आवर्स. दैट इज द कॉन्सेप्ट. F12 में नहीं, F1 सॉरी, या F11 इधर हाँ. यस, थैंक यू अमित भाई. सो GST यूजर नेम दिस हैज टू बी, अगर वो राइट नहीं है तो इधर राइट करेक्ट डालना. या सो GST पोर्टल का कॉन्फ़िगरेशन बताया, उसके बाद में F11 में आपको इसका वर्किंग करना है. ये GSTR1 फाइलिंग के लिए भी ये ज़रूरी है. बस हाँ, ठीक है. अच्छा, वो रिटर्न डेट का एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. सितंबर एंड अक्टूबर डेट का. सो हाँ, या सो अगर हम देखें, ये हैप्पी प्लास्टिक का ट्रांजैक्शन है. दिस इज शोइंग इन 1 सितंबर, बट मेरे 2B में अभी दिख रहा है. ओके, बुक्स में मेरा 1 सितंबर को दिख रहा है, बट 2B में अभी दिख रहा है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो हियर एंड मोर डिटेल्स. Oh, sorry. 3 में अभी चेंज. अच्छा, ये इफेक्टिव डेट और GST इफेक्टिव डेट में भी फ़र्क है. इफेक्टिव डेट इज विच इज़ बिन कमिंग फॉर लॉन्ग, मतलब जो टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शनलिटी है विच इज़ ओनली यूज फॉर क्रेडिट पीरियड एंड उसके लिए यूज़ होता है. तो डोंट गो टू दैट इफेक्टिव डेट, प्लीज़ गो टू दिस GST रिटर्न इफेक्टिव डेट.
सो मिसमैच इन रिटर्न पीरियड निकल गया मेरा, टू बी में जो अक्टूबर मंथ में दिख रहा है वो अक्टूबर मंथ में आ गया वो, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू कैन रिजॉल्व द एरर्स. हाँ प्लीज. एक ट्रांजैक्शन मिसमैच वाला